Once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing wave optics, and as you know, three phenomenon is the most important for the wave optics: interference, diffraction, and polarization. And right now we are discussing particularly interference. So the definition of the interference that is known to you. I'm just going to write down some conclusionary points with respect to the interference, what we had learned so far in this chapter. So thereafter, we also going to discuss some new topics. So anybody know what is the interference? किसी को पता है? Anybody? Effect produced by superposition of two or more wave is defined as a interference. अब कोई मुझे ये बताएगा कि ये इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? So this effect is with respect to the intensity. वो इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में है. तो जब दो कोई हमारे पास दो सोर्सेस है और उसमें से we can have a two more than two sources as well. So when the wave generated from it and interfere and superposed on some point of the screen, there is some intensity distribution we will observe on the screen, and that intensity distribution is considered to be the effect produced by the superposition of the two or more waves, and that is called the interference. Friends, case number one, suppose we are having a two sources producing the wave with the same intensity. Suppose two sources producing waves with the same intensity, that is I1 is equals to I2 is equals to I0. Assuming that both the sources producing the same intensity, I1 is equals to I2 is equals to I0, and having a phase difference phi between them, then resultant intensity at any point on a screen. तो वो स्क्रीन का कोई पॉइंट है तो वहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना मिलेगा? चलो कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन? एनीबडी? Anybody knows the formula of the result? 4I0. Very good. 4I0. बस इतना ही. Cos square phi by 2. 4I0 cos square phi by 2 is the generalized formula of the resultant intensity. ये resultant intensity का formula था. Friends, अब ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो सोर्स है वो कोहेरेंट भी हो सकता है, इनकोहेरेंट भी हो सकता है. तो ऐसा मान लेते हैं कि जो सोर्स हमारे पास है वो कोहेरेंट है.
सो ऐसा मान लो कि जो सोर्स है वो कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या हुआ? कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब ये हुआ कि उसमें से जो वेव्स जनरेट होते हैं उसका जो इंटेंसिटी है, उसका जो फेज डिफरेंस है, वो फेज डिफरेंस टाइम के साथ वराई नहीं होगा. तो फॉर द कोहेरेंट सोर्सेस अ फेज डिफरेंस will be independent of time, will be remains constant, it is not varying with the time. For the coherent source, a phase difference will not vary with the time. So that is called the coherent sources. So friends, अगर coherent source है तो क्या होगा कि ये जो फॉर्मूला है, ये इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है, तो नो डाउट अबाउट दैट कि इसका जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ वेरी नहीं होगा, बट अलग अलग स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट के ऊपर, स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पे उसका मतलब वो टाइम के साथ तो वेरी नहीं होगा बट पोजीशन के साथ वेरी होगा. तो अलग अलग पॉइंट पे फेज डिफरेंस आपको अलग अलग मिलेगा. आई एम टॉकिंग that phase difference is varying with the position of a point on the screen, it is not varying with the time. स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पे फेज डिफरेंस फाइव अलग अलग होगा. तो कुछ जगह पे ऐसा होगा कि कुछ फेज डिफरेंस ऐसा मिल जाता है कि बिकॉज ऑफ दैट द इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम. तो जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो फ्रेंड्स, जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है. और किसी को पता है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होता है? आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? 4I0. एग्जैक्टली. सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम and that maximum intensity is a 4I0. So that is a constructive interference. And you know the condition for the constructive interference? For the constructive interference, what should be the path difference and what should be the phase difference? In the case of constructive interference, 4n pi. 4n pi. path difference जो होता है वो होता है आपका n लैम्बडा. एंड फेज डिफरेंस जो होता है वो क्या होगा भैया? कोई बताएगा मुझे? 2n pi, where n start from 0, 1, 2 and so on. So that is all about the constructive interference. But अगर आपके पास ऐसे सोर्सेज है कि जिसमें फेज डिफरेंस जो है, फेज जो है वो टाइम के साथ वेरी हो रहा है, इसके अंदर ये जो फेज है आपका, दोनों फेज डिफरेंस जो है दोनों सोर्स के बीच का, वो टाइम के साथ अगर वेरी हो रहा है, so that kind of sources are considered to be क्या लिखना चाहिए? इनकोहेरेंट सोर्सेज. हाँ, बट यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात, इनकोहेरेंट सोर्सेज तो भी बात ही नहीं है, कोहेरेंट सोर्स की बात, कोहेरेंट सोर्सेज की ही बात है. बट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है वो तो मैंने समझ लिया. अब ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ स्क्रीन पे कुछ जगह पे ऐसा होगा कि जहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगा. तो डिस्ट्रक्टिव, वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसको बोलते हैं. तो फ्रेंड्स, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका इंटेंसिटी क्या होगा भैया? 0. मिनिमम हो जाएगा. और यहाँ पे वो एग्जैक्टली 0 होगा. अगर दोनों सोर्स के इंटेंसिटी सेम है तो रिजल्टेंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका इंटेंसिटी 0 लगेगा, 0 हो जाएगा. और इसके लिए अगर पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस के कंडीशन लिखने की ट्राई करेंगे तो बताएगा कोई मुझे व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर द पाथ डिफरेंस फॉर द केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? तो पाथ डिफरेंस का जो कंडीशन है वो ऐसा है, 2n + 1 लैम्बडा बाई 2 है, बट n स्टार्ट फ्रॉम है ना 0 है.
तो इन प्लेस ऑफ दैट कैन आई से आई कैन डू वन मोर थिंग, 2n+1 है ना, तो उसके बदले अगर मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पे 2n, मुझे है ना 2n-1 लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर या यू हैव टू स्टार्ट n फ्रॉम द, अगर 2n-1 अगर लिखते हो तो n स्टार्ट फ्रॉम द, तो n से को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए आपको, n should be start from the 1 to 3, so otherwise it will be the same thing। अगर 2n+ के बदले आपने 2n-1 लिखा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, आप n जीरो के बदले 1 से स्टार्ट करो तो ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाएगा। एंड फेज डिफरेंस का कंडीशन क्या आएगा भैया, तो इट शुड बी अ 2n-1, 2n-1 इन प्लेस ऑफ लैम्बडा यू कैन राइट 2 पाई। लैम्बडा के रिस्पेक्ट में जो फेज डिफरेंस होता है वो 2 पाई होता है, तो 2 पाई/2 मतलब पाई रहेगा, वेर n स्टार्ट फ्रॉम 1 to 3। तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन इन द केस ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज। बट अगर अगर इनकोहेरेंट सोर्स है, अगर जो सोर्स है वो कोहेरेंट नहीं है, if the sources are incoherent, अगर सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है तो उसके लिए भैया क्या होगा, तो अगर सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है तो फिर क्या होगा, होगा ये कि ये जो फेज डिफरेंस है, आपका जो फेज डिफरेंस है दो सोर्स के बीच का जो फाई है फेज डिफरेंस, तो ये जो फाई है ना उसका वैल्यू वेराई होगा विद द टाइम, it is varying continuously with the time, so it will vary, phi is varying with the time, phi will vary with time। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि आपका जो इंटेंसिटी है ना वो भी कंटिन्यूसली वराई होगा, तो इंटेंसिटी कंटिन्यूसली होगा वराई होगा तो आपको क्या दिखेगा, आपकी जो आँख है वो वेरिएशन को कैच नहीं कर पाएगी, उसको तो आपकी आँख, हम दैट इज द लिमिटेशन ऑफ आई, our eye cannot detect the variation if the variation is very fast, so what our eye feel the average intensity on the screen। तो अगर इनकोहेरेंट सोर्सेज है तो आपको क्या मिलेगा, आपको स्क्रीन पे एवरेज इंटेंसिटी मिलेगा, और ये अगर कोस स्क्वायर 5/2 का अगर एवरेज निकाले तो आपको पता होगा कि उसका आंसर क्या आएगा भैया, कोई बताएगा मुझे, 2i0। 2i0। तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर कोहेरेंट सोर्सेस है ना तो हमारे पास स्क्रीन पे क्या मिलेगा, कुछ जगह पे इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगा, कुछ जगह पे कम मिलेगा, ऐसे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, उसको स्टेशनरी इंटरफेरेंस बोलते हैं। बट वो स्टेशनरी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करने के लिए हमारा सोर्सेज कैसा होना चाहिए हमारे पास, ये स्टेशनरी इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करने के लिए सोर्सेज कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट होने चाहिए। अगर सोर्सेस इनकोहेरेंट है तो आपको पूरे स्क्रीन पे सब जगह पे यूनिफॉर्म इंटेंसिटी मिलेगा, 2i0 मिलेगा। तो इसी के वजह से तो अगर हम हमारे घर पे अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल टाइप ऑफ बल्ब, if we have a two identical kind of bulb, then also we are not able to produce any kind of pattern on the wall because they will behave as a incoherent sources, and on the wall we get the uniform intensity everywhere, and that should be equals to 2i0, that is where i0 is the intensity of each source, where i0 is the intensity of each sources। तो क्या फ्रेंड्स ये पूरा डिस्कशन आपको समझ में आया, ये जो रिवीजन ही था, बट ये एक चीज़ थी जो आपको माइंड में रखना था। अब मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आपके टेक्स्ट में नहीं है बट JEE नीट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम ऐसा मान के चले थे कि ये जो दोनों सोर्सेस है उसके इंटेंसिटी सेम है, बट ऐसा भी पॉसिबल है कि वी आर हैविंग अ टू डिफरेंट सोर्स हैविंग अ डिफरेंट इंटेंसिटी। So case number 2, which is not given in your textbook, but it is important for the JEE and NEET. Suppose two sources producing waves
of a different wavelength. Producing wave of the different intensity. Producing wave of a different intensity I1 and I2, and having a phase difference phi between them. Having phase difference phi. Then resultant intensity at any point on a screen can be given by, ये हम प्रूव कर सकते हैं बट मैं प्रूव नहीं करने वाला हूँ, मैं उसको प्रूव नहीं करूँगा, आप डायरेक्टली इसको एक्सेप्ट कर लेना। तो ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है ना, वो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं। विदाउट प्रूफ वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस फॉर्मूला। इसको मैं क्रॉस चेक करने वाला हूँ, चलो उसको मैं क्रॉस चेक करूँगा। चलो अगर यहाँ पे I1 एंड I2 अगर सेम हो जाएगा तो फिर वो कौन सा वाला केस हो जाएगा? अगर I1 एंड I2 को अगर सेम कर लेते हैं, I1 एंड I2 को सेम कर लेते हैं, तो ये कौन सा केस हो जाएगा? कोहेरेंट सोर्सेस वाला। तो फिर वो तो नहीं, कोहेरेंट सोर्स की तो बात ही नहीं है। देखो, कोहेरेंट सोर्स का मतलब ऐसा नहीं है कि इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। कोहेरेंट सोर्स का मतलब ऐसा है कि दोनों के द्वारा जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं उसके वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। इंटेंसिटी सेम होना, दैट इज नॉट द कंडीशन फॉर द कोहेरेंट सोर्स। बट अगर मैं यहाँ पे ऐसा लेता हूँ कि दोनों सोर्स के इंटेंसिटी सेम है, तो केस नंबर 1 हो जाएगा। तो फिर वो तो केस नंबर 1 हो जाएगा। तो चेक करते हैं कि क्या इसके द्वारा केस नंबर 1 का ही फॉर्मूला हमको वापस मिलता है। लेट I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I0। तो फ्रेंड्स, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ द इंटेंसिटी? तो फिर इंटेंसिटी क्या आएगा? फिर इंटेंसिटी का फॉर्मूला 4I0 cos स्क्वायर। वो आना चाहिए। अगर वो आ जाता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि तो फिर ये फॉर्मूला बराबर है। अभी तो प्लेस करते हैं, I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I0 प्लेस करो, तो यहाँ पे I0 प्लस I0 मतलब, तो फिर इस इक्वेशन में अगर वैल्यूज प्लेस करते हैं तो 2I0 प्लस 2 रूट I0 मतलब I0 स्क्वायर, 2I0 स्क्वायर का रूट निकालो तो वापस से I0 आ जाएगा इंटू कोस फाइव। चलो यहाँ पे 2I0 को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 1 प्लस कोस फाइव बचेगा। अगर 2I0 को कॉमन लेते तो 1 प्लस कोस फाइव बचेगा। बट फ्रेंड्स, 1 प्लस कोस फाइव का मतलब क्या हुआ? 2 कोस स्क्वायर 5/2। 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो फ्रेंड्स, 1 प्लस कोस थीटा दैट इज अ 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो व्हाट इज द फाइनली आंसर? 2 टू ज़ा 4, तो ये हो गया 4I0 कोस स्क्वायर 5/2। तो क्या वो वाकई में वापस से वही फॉर्मूला है? यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो फॉर्मूला था, दो डिफरेंट, if we have a sources producing the two different intensity, then the resultant intensity can be given by I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. That should be a valid formula because वो satisfy कर रहा है equal intensity के लिए जो फॉर्मूला था उसका भी वो satisfaction कर ही रहा है। तो मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला प्रॉपर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। बट वापस से हम यहाँ पे वापस से वही चीज़ करेंगे कि भाई हमारे पास जो सोर्सेज है क्या वो कोहेरेंट है या नहीं है, वापस से वही चीज़ डिस्कस करेंगे वंस अगेन। चलो वंस अगेन, फॉर द कोहेरेंट सोर्स
phi will not be going to vary with the time. हमारा जो phi है ना, that will remains constant with the time, remaining constant with time. तो फिर टाइम के साथ तो कुछ वेरिएशन होगा नहीं, टाइम के साथ तो कुछ वेरिएशन नहीं होगा, बट पोजीशन के साथ हो सकता है। तो उसके लिए वापस से यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है। कुछ कुछ जगह पे ऐसा मिलेगा कि जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमाइज्ड हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। और जहाँ पे इंटेंसिटी कम हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, वहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगा। तो देखो फॉर्मूला के अंदर सोचो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस का कंडीशन क्या था? व्हाट वाज द कंडीशन फॉर द फेज डिफरेंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? phi should be a 2n pi. So just put the value 2n pi, just put the value 2n pi in the following formula. इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वहां पे 2n pi प्लेस करो phi के बदले। तो phi is equals to 2n pi where n start from 0 1 2 3। तो phi का वैल्यू जो रहेगा वो 0 होगा, 2 pi होगा, 4 pi होगा, 6 pi होगा, 8 pi होगा। मतलब वहां पे जो phi का वैल्यू 0 प्लेस करो वहां पे, तो cos 0 1 होगा, cos 2 pi भी 1 होगा, cos 4 pi भी 1 होगा, cos 6 pi भी 1 होगा, 1 ही रहेगा। तो जो है ना वो cos फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ही मिल रहा है, तो आपका इंटेंसिटी मैक्सिमाइज्ड हो जाएगा। एंड हाउ मच दैट विल बी? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, बिकॉज cos फाई का जो वैल्यू है ना वो मैक्सिमम है। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो आपका जो फेज डिफरेंस होगा वो 2n पाई होना चाहिए। एंड इन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस द इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम, and that maximum intensity can be given by I1 plus I2 plus 2 root I1 I2। चलो, ये जो है वो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का इंटेंसिटी आपको मिला, I1 plus I2 plus 2 root I1। चलो, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? तो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो उसके अंदर फेज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस का कंडीशन क्या है भैया? तो 2n minus 1 phi है कंडीशन। मतलब n start from where n start from here the n start from 0 1 2 3 and here n start from 1 2 3। तो अगर आप वैल्यूज प्लेस करोगे n is equals to 1 2 3 तो आपको पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई ऐसे वैल्यूज मिलेंगे। कोस पाई का वैल्यू -1 है, कोस 3 पाई का भी -1 है, कोस 5 पाई पाई की -1 ही रहेगा। तो कोस फंक्शन का मिनिमम मोस्ट वैल्यू मिलेगा, दैट इज -1। तो इसका मतलब कि आपका इंटेंसिटी भी मिनिमम मिलेगा। एंड हाउ मच इट विल बी? इट विल बी I1 plus I2, it will be I1 plus I2 minus 2 root I1 I2 because cos of phi becomes -1। So this is the minimum intensity you are getting in the case of your destructive interference। फ्रेंड्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकोहेरेंट सोर्सेज। देखो, कोहेरेंट सोर्स की तो बात खत्म हो गई, बट अगर आपके पास ऐसे सोर्सेज है कि जिसका इंटेंसिटी अलग अलग है, तो अब जाके उसका क्या होगा इनकोहेरेंट सोर्स में? तो इनकोहेरेंट सोर्स अगर आपके पास है तो फिर मैंने जैसे बताया आपको कि आपका जो जो फेज होगा ना वो टाइम के साथ वराई होगा, फेज डिफरेंस। तो फिर क्या होगा कि फाई विल नॉट बी रिमेनिंग कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, टाइम के साथ वराई होगा। तो फिर आपकी आंख को क्या फील होगा? यू विल फील द एवरेज इंटेंसिटी।
सो इसका अगर एवरेज निकालेंगे I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कोस ऑफ फाई का, तो सारे टर्म्स वैसे तो कांस्टेंट ही है, सारे टर्म्स वैसे तो कांस्टेंट ही है, कोस फाई वाला जो टर्म है ना वो टाइम के साथ वेरी होगा। सो I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2। अब ये जो कोस फाई का जो टर्म्स है वो टाइम के साथ वेरी होगा। तो कोई मुझे बताएगा, ये पीरियोडिक फंक्शन है, टाइम के साथ पीरियोडिकली वेराइड है, तो कोई बताएगा साइन ओमेगा टी या कोस ओमेगा टी जो टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज होता है उसका एवरेज कितना होता है? कोई बताएगा? 0. 0 होता है, सही बात है। तो फाइनली फ्रेंड्स वी कम टू कंक्लूजन दैट if there is a incoherent sources we have, then the resultant intensity remaining constant everywhere, and that is equals to the addition of the intensity of both the sources. फ्रेंड्स आपको ये पता होगा कि इंटेंसिटी जो होता है ना, इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो याद रखना है I1 प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, I2 प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड 2 स्क्वायर। बट अगर I मैक्सिमम की अगर बात करते हो, सो दैट इज बिकम्स A मैक्सिमम स्क्वायर, एंड A मैक्सिमम का मतलब A1 प्लस A2 का स्क्वायर, एंड मिनिमम इंटेंसिटी इफ यू टॉक तो इट विल बी A मिनिमम स्क्वायर, A मिनिमम मतलब A1 माइनस A2 स्क्वायर। सो फ्रेंड्स ये भी एक चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए। सो फ्रेंड्स ये जो मैंने डिस्कशन किया ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, बट JEE नीट के लिए काम का है कि अगर दो सोर्स हमारे पास ऐसे है कि जिसके इंटेंसिटी अलग अलग है, हमारे टेक्स्ट में क्या था कि ऐसे ही सोर्सेस के बारे में डिस्कशन किया था कि जिसके इंटेंसिटी सेम हो, बट अगर इंटेंसिटी अलग अलग है तो फिर क्या होगा, कोहेरेंट सोर्स के टाइम क्या होगा, इनकोहेरेंट सोर्स के टाइम क्या होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या मिलेगा, तो उसका डिस्कशन मैंने किया, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So then after we also going to revise some question corresponding to the Young's double slit experiment. चलो, तो friends the topic name was a Young's double slit experiment. इसको YDSE भी बोलते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो पहली चीज ये है कि इन द यंग्स एक्सपेरिमेंट both the sources are coherent and having same intensity. यंग्स एक्सपेरिमेंट जो था ना इन YDSE, both the sources are coherent and having the same intensity. अगर सेम इंटेंसिटी वाले सोर्सेज है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, तो फिर सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या मिलेगा भैया एट एनी पॉइंट? 4I0. हाँ वो तो कंस्ट्रक्टिव के लिए, बट कोई भी पॉइंट के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो मिलेगा वो 4I0 cos square pi by 2. हाँ, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा वहाँ पे एग्जैक्ट 4I0, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगा वहाँ पे एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। चलो, क्या ये चीज़ पता चली फ्रेंड्स? दैट इज द रूल नंबर 1। चलो, कोई मुझे बताएगा, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, path difference at a distance x from
सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से x डिस्टेंस पे पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? किसी को पता है? दैट इज h2p minus s1p. लास्ट लेक्चर, लास्ट क्वेश्चन, x स्मॉल d अपॉन कैपिटल डी. तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में लास्ट टाइम हमने डिस्कस की. लास्ट क्वेश्चन वही था जो आपके लास्ट बोर्ड के एग्जाम के अंदर, अभी जो लास्ट बोर्ड का एग्जाम गया था ना गुजरात में, उसमें यही क्वेश्चन पूछा था, पाथ डिफरेंस निकालना था. तो हमने पूरा जो टॉपिक था वो आपको याद होगा कि जियोमेट्री से प्रूव हो रहा था. x स्मॉल d अपॉन कैपिटल डी, where x is the distance of that point from the central fringe, small d is the distance between the two sources, small d is the distance between the two sources, and capital D is the distance of the screen from the sources. But यहाँ पे number one for bright fringe, your path difference must be equals to n lambda because constructive interference. And अगर for a dark fringe तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. तो फिर वहाँ पे पाथ डिफरेंस का कौन सा कंडीशन लगेगा भैया? 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 भी लिख सकते हो, 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2 भी लिख सकते हो. अगर माइनस 1 लिखा तो यू हैव टू स्टार्ट द वैल्यू ऑफ द n फ्रॉम 1 to 3. एंड अगर आपको 2n प्लस 1 यहाँ पे लिखा होता तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 1 to 3. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Is it okay? Am I audible to you, friends? Yes, sir. तो ये क्या है वो आपको पता है ना भैया? ये वो चीज थी कि S1 S2 are the two sources, distance between them is assumed to be a small d. आपको पता होगा कि ये जो small d होता है ना, वो उसका जो ऑर्डर होता है ना, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर. और यहाँ पे सामने एक स्क्रीन रखना होता है, और स्क्रीन जो होता है ना, उसका जो डिस्टेंस होता है हमारे सोर्स से वो कैपिटल डी होता है. और यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, वहाँ पे मुझे अगर पाथ डिफरेंस फाइंड करना है तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, वो डिस्टेंस हम x बोलते हैं. तो ये बात थी, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर लास्ट क्वेश्चन. ये आपका पाथ नंबर 1 था और ये आपका पाथ नंबर 2 था. तो इसके बेस पे हमने पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला निकाला था. फ्रेंड्स, टॉपिक नंबर 3. अब मैं प्रूव करूंगा. अभी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो अभी मैं थोड़ी देर में अभी डिस्कस करने वाला हूँ. डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज. आई एम गोइंग टू प्रूव दिस क्वेश्चन. डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंसेक्यूटिव डार्क ब्राइट और डार्क फ्रिंज, वो अभी मैं प्रूव करने वाला हूँ. बीटा इज इक्वल्स टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. तो चलो पहले वो चीज़ हम कर लेते हैं. वी आर गोइंग टू प्रूव द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज. तो वो भी क्वेश्चन वही क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी था. सो क्वेश्चन नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 22 तो हमने डिस्कस कर लिया था, और उसमें ये कंडीशन दिया हुआ है. यहाँ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको. यहाँ से ये आपका क्वेश्चन जो है ना, यहाँ से एडिशनल थिंग है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको. यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो रहा है. S2p माइनस S1p इज इक्वल्स टू x d बाई डी. यहाँ पे 22nd क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि अगर
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इसको किसके साथ कंपेयर करना है, एन लैम्डा के साथ। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ये पार्ट डिफरेंस को किसके साथ कंपेयर करना है, 2n+1 लैम्डा बाई 2 या 2n-1 लैम्डा बाई 2 भी लिख सकते हो। बट अभी जो क्वेश्चन मैं कराने जाने वाला हूं वो भी लास्ट बोर्ड के एग्जाम में पूछा था। इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिराइव द फॉर्मूला बिटवीन द टू सक्सेसिव डार्क और ब्राइट फ्रिंज। सो फ्रेंड्स, क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिख रहा है फ्रेंड्स? No, sir. नहीं दिख रहा है? ओके, अच्छा तो मैंने जो पहले बोला वो तो सब गया ना। हाँ, मैं कि ये क्वेश्चन नंबर 20 अभी दिखा आपको, मोबाइल पे दिख रहा है आपको? हाँ, सर. ओके फाइन। अभी क्वेश्चन नंबर 22 जो है ना, वो यहाँ पे S2P माइनस S1P = XD बाई डी आ रहा है ना, वहाँ पे क्वेश्चन आपका एक्चुअली खत्म हो गया। वहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है। ये सब सारी चीज़ एडिशनल है, ये इंफॉर्मेशन एडिशनल है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। S2P माइनस S1P = XD बाई डी, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है। फिर ये बताया है कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इसको पार्ट डिफरेंस को n लैम्डा के साथ कंपेयर करो, एंड अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ये पार्ट डिफरेंस को आप 2n+1 लैम्डा बाई 2 के साथ कंपेयर करो। और ये भी बोला है कि 2n+1 लैम्डा बाई 2 नहीं लिखना है तो आप 2n-1 लैम्डा बाई 2 भी लिख सकते हो। n-1 लैम्डा मतलब 2n-1 लैम्डा बाई 2 ये भी लिख सकते हो, बट n स्टार्ट फ्रॉम 1 to 3 करना पड़ेगा, 0 के बदले। ये भी बताया। अब क्वेश्चन नंबर 23, क्या अब आपको क्वेश्चन नंबर 23 आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है फ्रेंड्स? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन ऐसा है कि डिस्कस और डिराइव द फॉर्मूला in the Young's double slit experiment, derive the formula between the two consecutive dark और bright fringe। ऐसा क्वेश्चन है। चलो फ्रेंड्स, हम पहले है ना 2 consecutive ब्राइट फ्रिंज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद डार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर ब्राइट फ्रिंज, तो मुझे ये बताओ कि अगर ब्राइट फ्रिंज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन लेना चाहिए या डिस्ट्रक्टिव? Constructive. वेरी गुड। So applying condition for constructive interference, चलो, what was the condition for the constructive interference? N lambda. हाँ, x small d by d is equals to n lambda. So path difference equals to n lambda, but path difference का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया है? पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, चाहे कुछ भी हो, x d by d is equal, and that should be compare with the n lambda and start from 0, 1 to 3. अब फ्रेंड्स एक काम करते हैं, x को सब जगह इक्वेशन बना देते हैं। x इज इक्वल टू, कैन आई से n इंटू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d? यस और नो फ्रेंड्स? Yes, sir. चलो, फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, for the nth bright fringe, I should write the distance xn. xn is equals to n lambda capital D by small d. And for n plus 1th, मेरा टारगेट क्या है फ्रेंड्स? मेरा टारगेट ये है कि मैं ये जो यंग्स एक्सपेरिमेंट है तो उसमें मुझे क्या करना है, मुझे I want to find the two distance between the two successive bright fringe. सपोज कि ये nth ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे x1 लोकेशन पे है, xn लोकेशन पे है, एंड n+1th जो ब्राइट फ्रिंज है वो उसका लोकेशन xn+1 है।
तो मुझे इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, कोई बताएगा मुझे? बोलो कैसे निकलेगा वो डिस्टेंस दोनों के बीच का? देखो फिगर को देख के सीधी सी बात है, वो ये डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है दोनों के बीच में तो मुझे क्या करना पड़ेगा? xn minus xn plus तो 1. आप क्या करने का है कि ये जो xn+1 डिस्टेंस है उसमें से xn सब्ट्रैक्ट कर दो, तो उसके बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो पहले मैंने xn फाइंड कर दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ n+1 फ्रिंज का डिस्टेंस में फाइंड कर रहा हूँ। तो वो क्या मिलेगा अब देखो, तो मुझे n के बदले क्या लिखना चाहिए अभी? n plus 1. n+1 lambda d by d। So now I can say a distance between two consecutive bright fringe इसको मैं बीटा बोल दूं तो बीटा शुड बी इक्वल्स टू xn+1 माइनस xn। तो ये लैम्बडा डी बाई डी कॉमन ले लो तो बचेगा n+1 माइनस n। तो फ्रेंड्स फाइनली ये बीटा का वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड्स? लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी ही रहेगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. तो क्या ये आपको फॉर्मुलेशंस पता चला फ्रेंड्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस? इज दैट क्लियर? Yes, sir. अभी तक जो मैंने किया था वो डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के लिए किया था, अभी मैं किसके लिए करूंगा ये प्रोसेस? Dark fringe. फॉर टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज। तो मुझे ये बताओ कि कौन सा कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव का? Destructive. एग्जैक्टली। तो अप्लाइंग द कंडीशन फॉर द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशन अप्लाई करो। तो आपका पाथ डिफरेंस जो x स्मॉल d बाई डी है दैट शुड बी इक्वल्स टू, यू कैन राइट डाउन 2n प्लस और 2n माइनस वन वट एवर यू लाइक। तो यहाँ पे मैं है ना 2n माइनस वन लेके सॉल्व कर रहा हूँ, आप 2n प्लस वन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, वेर n स्टार्ट फ्रॉम 1 to 3। तो फ्रेंड्स अगर इसके बेस पे अगर x को सब जगह इक्वेशन बनाते हो तो आपको क्या मिलेगा? 2n माइनस वन लैम्बडा कैपिटल डी बाई 2 स्मॉल डी। चलो ये आपका x का फॉर्मूला मिला, आप दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द x। चलो अब कर सकते हैं फॉर nth डार्क फ्रिंज। तो फ्रेंड्स उसके लिए एक्स एन इज इक्वल्स टू जो है वही 2n माइनस वन लैम्बडा कैपिटल डी बाई 2d, एंड फॉर n प्लस वंथ डार्क फ्रिंज तो यहाँ पे आएगा xn+1 इज इक्वल्स टू क्या लिखना चाहिए भैया? 2 इंटू एन प्लस वन माइनस वन, जहाँ पे n है वहाँ पे मुझे n+1 लिखना पड़ेगा। तो 2n के बदले n+1 माइनस वन तो रहेगा ही लैम्बडा डी बाई 2d। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो 2n प्लस टू माइनस वन, तो क्या मिलेगा आपको, क्या बचेगा? 2n टू प्लस वन माइनस वन, तो क्या बचेगा? 2n plus 1 वेरी गुड, इट इज अ 2n प्लस वन लैम्बडा कैपिटल डी बाई 2d। चलो अब मुझे एक्स एन मिल गया, एक्स एन प्लस वन मिल गया, तो अभी मुझे क्या मिलेगा फ्रेंड्स? डिस्टेंस बिटवीन
2 consecutive डार्क फ्रिंज। कैसे मिलेगा भैया, उसको भी बीटा ही बोल देते हैं चलो। तो बीटा इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, तो एक्स एन प्लस 1 में से एक्स एन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो लैम्बडा कैपिटल डी बाई 2d कॉमन रहेगा, तो बाकी बचेगा 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 1 बचेगा। देखो पहले तो 2n प्लस 1 है और दूसरे में 2n माइनस 1 है, बट माइनस बीच में आएगा तो 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 2n कैंसिल, तो ये बचेगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या मिलेगा आपको, लैम्बडा डी बाई डी। तो फ्रेंड्स ये जो मुझे मिला दैट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज अगर फाइंड कर लो या डार्क फ्रिंज फाइंड कर लो, वो दोनों सेम ही मिला। इसका दूसरा मीनिंग ऐसा हुआ कि यंग्स एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी फ्रिंजेस मिलते हैं वो सारे फ्रिंजेस के विड्थ कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज अगर फाइंड करते हैं या डार्क फ्रिंज फाइंड करते हैं वो हमको सेम ही मिलता है। मतलब ये हुआ कि यंग्स एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी फ्रिंजेस मिलते हैं उसका सारे फ्रिंजेस का विड्थ सेम ही होगा, और ये जो डिस्टेंस है ना वही उसका विड्थ है, ये जो डिस्टेंस है वही उसका विड्थ, फ्रिंज विड्थ भी वही होगा, फ्रिंज विड्थ भी वही होगा। तो फ्रेंड्स वापस से हम व्हाइट बोर्ड पे आते, मतलब ये जो हमने लिख रहा था, तो देखो वापस से ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे आ गए। तो वहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंज इज लैम्बडा कैपिटल डी बाई डी। तो ये जो फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया, क्या फ्रेंड्स ये पता चला आपको फ्रेंड्स, इज इट क्लियर? Yes, sir. In young double slit experiment, intensity and width of each fringe is the same. This is also the formula. This is also a formula for a fringe width. तो अगर कोई ऐसा पूछे कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, दैट इज अ लैम्बडा डी बाई डी। उसका रीजन, इसका रीजन ऐसा है, देखो मैं आपको बताऊं इसका रीजन, ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्यों है वो मैं आपको बताऊं। देखो सपोज के ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। यंग्स एक्सपेरिमेंट का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, नहीं किया तो मैं बताऊँ आपको कि इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज। देखो यहाँ पे इंटेंसिटी 0 होता है, तो ये डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, यस और नो? Yes, sir. तो इसके अंदर ही आप देख सकते हो कि इसी पार्ट के अंदर एक ब्राइट फ्रिंज है, देखो इसी पार्ट के अंदर एक ब्राइट फ्रिंज है, तो फ्रिंज का विड्थ भी वही होगा। इज दैट क्लियर? ये डिस्टेंस पे ही एक ब्राइट फ्रिंज हमको दिख रहा है, तो दैट इज ऑल्सो द फ्रिंज विड्थ। एंड लास्ट थिंग हियर, लास्ट थिंग, fringe width in Young's double slit experiment is depend on lambda। देखो आप देख सकते हो कि लैम्बडा के ऊपर डिपेंडेंट है। सो अगर आप लैम्बडा चेंज करते हो तो विड्थ भी चेंज होगा। इफ यू डिक्रीज द लैम्बडा, अगर आपका लैम्बडा डिक्रीज होगा
तो आपका जो पैटर्न है, so if lambda decreases then width of a fringe also decreases and because of that आपका पैटर्न कैसा बनेगा? स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न है वो नैरोवर बनेगा या वाइडर बनेगा? नैरो बनेगा। अगर ये लैम्बडा इंक्रीज करते हो तो सारे फ्रिंजेस का विड्थ भी इंक्रीज होगा। तो अगर फ्रिंज का विड्थ इंक्रीज बनेगा तो आपके जो स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का पैटर्न जो है, सो पैटर्न बिकम्स नैरोवर और वाइडर? Wider. इट बिकम्स अ वाइडर। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ थी जो आपको समझने की ज़रूरत थी यंग्स एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो क्या फ्रेंड्स ये पूरा टॉपिक आपको समझ में, ये यंग्स एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया? यस सर। ओके, सो Yes, sir. ओके फाइन। सो फ्रेंड्स ये वापस से मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वापस से हम आ जाते हैं, ये आ रहा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 वी हैड कंप्लीटेड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें क्या है कि पहले कंस्ट्रक्टिव, पहले वो डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बारे में डिस्कशन किया है, उसके बाद कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बारे में डिस्कशन किया है, बट दोनों में आंसर आपका सेम ही मिल रहा है, लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना। देखो कंफ्यूजन कहाँ पे होता है मैं आपको बताऊं। कंफ्यूजन ये होता है कि बच्चे भूल जाते हैं। देखो डोंट मैश अप, ध्यान रखो। कहाँ पे ध्यान रखना है? जस्ट नॉट दैट कि अगर पाथ डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है भैया? एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी है। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी है। एंड फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है भैया? लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी है। इज दिस both are different thing? Is that understood, friend? Yes, sir. They both are a different thing. Is it understood? Is that clear? So don't mash up with it. Is it okay? चलो क्वेश्चन नंबर 24 इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। 24 में ये बता रहा है कि जो ये हमने जो भी कुछ डिस्कशन किया वो ऐसे कंसीडरेशन के साथ किया कि हमारा स्क्रीन बहुत ही दूर है, बट अगर स्क्रीन नज़दीक होता है, अगर स्क्रीन बहुत दूर नहीं है, स्क्रीन नज़दीक है, तो क्या होगा कि पैटर्न आपका जो है ना, ये देखो ये पैटर्न दिख रहा है आपको। तो अगर आपका स्क्रीन थोड़ा नज़दीक है तो थोड़ा स्क्रीन पे जो आपके जो पैटर्न मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। इफ डी इज नॉट सो मच लार्ज, मतलब स्क्रीन इज एट द स्मॉलर डिस्टेंस, इज नॉट लार्ज। ये जो स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो लार्ज नहीं है तो ये मिलेगा, बट इफ द स्क्रीन इज एट द वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस तो आपको ये पैटर्न मिलेगा। तो बस इतना ही आपको, मतलब ये 24 ओनली फॉर योर नॉलेज, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। 24 को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या लिखा है कि व्हाट हैपन टू द फ्रिंज व्हेन द स्क्रीन इज अवे फ्रॉम द 2 पॉइंट सोर्स। तो इट इज़ वेरी लार्ज डिस्टेंस, देन द पैटर्न विल बी ऑब्टेन लाइक दिस, मतलब लीनियर फ्रिंजेस मिलेगा आपको। अगर वो स्क्रीन आपका नज़दीक है तो आपका जो फ्रिंजेस है ना, ये जो आपके इंटरफेरेंस फ्रिंज जो है वो कुछ आपको हाइपरबोला जैसा मिलेगा, हाइपरबोला जैसा मिलेगा। तो ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है। 25th क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस कर लिया, वो रिपीट है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही
क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो इसी का तो रिपीटेशन है। कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 21 वही तो है। एक्सप्लेन द यंग्स एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट एंड द हाउ द इंटरफेरेंस पैटर्न इज प्रोड्यूस्ड। तो 21 जो है वही तो 25 में है। 25 वही तो है कि डिस्क्राइब द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो वही का वही क्वेश्चन भी वही है कि भाई ये 3 स्क्रीन होता है, एक पहले में 1 स्लिट होता है, दूसरे स्क्रीन में 2 स्लिट होता है और स्क्रीन के ऊपर आपको पैटर्न मिलेगा। तो वो चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बट यहाँ पे एडिशनल चीज़ ये है कि इंटेंसिटी का ग्राफ भी ड्रॉ किया है, जो मैंने अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। सारे फ्रिंजेस सेम विड्थ के हो गए, सेम इंटेंसिटी के हो गए। तो फ्रेंड्स ये 25th क्वेश्चन रिपीटेशन है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका इंटरफेरेंस कंप्लीट हो रहा है थ्योरी वाइज। इसके बाद डिफ्रैक्शन टॉपिक है, बट अब हम कुछ इंटरफेरेंस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। मुझे ये बताओ फ्रेंड्स, कोई न्यूमेरिकल मैंने स्टार्ट किया सॉल्व करने का इस चैप्टर में से? कुछ भी अभी नहीं कराया न्यूमेरिकल में? एक ही करा है। अच्छा, कराया है न्यूमेरिकल। कौन सा न्यूमेरिकल कराया है? स्टार्टिंग में जे फर्स्ट હતો એ જ કરાયો છે. अच्छा, ओके फाइन। वी हैव जस्ट डिस्कस द न्यूमेरिकल करस्पोंडेंट डॉपलर्स इफेक्ट, एम आई राइट? डॉपलर्स इफेक्ट के बेस पे न्यूमेरिकल कराया है। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। इन दिस चैप्टर यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व ओनली 12 न्यूमेरिकल। आपको 12 न्यूमेरिकल ही करने हैं, गुजरात बोर्ड वाले के लिए बात है। और उसमें से एक न्यूमेरिकल कंफर्म्ड बोर्ड के एग्जाम में आएगा 100%। फ्रॉम द 12 न्यूमेरिकल 1 कंफर्म्ड विल बी गोइंग टू आस्क। तो फ्रेंड्स कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है, दैट इज बेस्ड ऑन द डॉपलर्स इफेक्ट। ओके, चलो अब है ना, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो आप ट्राई करना। उसके अंदर 4 अलग अलग क्वेश्चन है। देखो मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। When I am talking about the question number 2 of the illustration number 2 I am talking, क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर. तो क्या लिखा है? When the monochromatic light is incident on the surface of the separating two media, the reflected and refracted light both have the same frequency as the incident frequency. Why? तो ऐसा पूछा है कि जब आप कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे को इंसिडेंट करते हो तो क्या होता है भैया कि अगर हमने ऐसा देखा था, शायद आपको पता होगा कि व्हेन द रे इज इंसिडेंट फ्रॉम वन मीडिया टू अदर मीडिया, तो उसका रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। बट ऐसा बोला गया है, ऐसा दिया गया है यहाँ पे कि refracted ray and reflected ray having a same reflected and refracted rays having a same frequency. Why? तो फ्रेंड्स इसका बहुत बड़ा आंसर दिया है क्वेश्चन में। बड़ी एक सिंपल सी चीज़ है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स। जब आप सोर्स चेंज करोगे ना, आप जब सोर्स चेंज करोगे तो ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर ऐसा है कि frequency is the characteristic of a source. When the ray is transformed from one media to other media, a source is not going to change. Source remains the same, and as a source remaining the same, I can say frequency remaining the same. So if the ray is entering from one media to other media, so what is going to be changed? Frequency does not going to be changed because frequency is the characteristic of the source. तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, बट उसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज वेवलेंथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मीडियम। तो मीडियम चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे y का आंसर क्या है? सिंपल, फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोर्स। फ्रीक्वेंसी कैन चेंज ओनली व्हेन द सोर्स गेट्स चेंज्ड, दैट इज वाई।
सो इसका सिंपल सा आंसर ऐसा लिखना है आपको, यहाँ पे बहुत बड़ा लिखा हुआ है, जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, when the light travels from the rarer to the denser medium, its speed decreases. Does the reduction in the speed implies at the reduction in the energy? कोई लाइट एक मीडियम रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो हमको पता है कि उसका जो स्पीड है ना वो रिड्यूस होगा, वो हमको पता है। बट क्या ये स्पीड का जो रिडक्शन है उसका मीनिंग क्या ऐसा होगा, क्या ये स्पीड का जो रिडक्शन है तो उसका मीनिंग ऐसा भी होगा कि वो एनर्जी भी लॉस कर रहा है? नहीं फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, energy or intensity is directly proportional to the amplitude square. So if the amplitude gets changed, then and then the energy gets changed. तो यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एनर्जी कम हो जाएगा। सो इसका आंसर आएगा नो, बिकॉज एनर्जी और इंटेंसिटी इन द वेव थियरी विद रिस्पेक्ट टू द वेव थियरी ऑफ लाइट is depend on the amplitude, is not depend on the velocity. It is nothing to do with the velocity. So that's why decrement in the velocity does not imply decrement in the energy also. It is a wrong thing. Okay, so that's wrong. Chalo. Third question, in the wave picture of light, intensity of the light is determined by the square of the amplitude. Okay, I proportional to a square. But what happened when we consider the photon nature of light, particle nature, photon nature of light? देखो ऐसा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में कि भाई अगर वेव थ्योरी ऐसा बता रही है कि इंटेंसिटी जो होता है ना वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के हिसाब से होता है विथ रिस्पेक्ट टू द वेव थ्योरी, तो फोटोन थ्योरी में क्या होगा? तो फ्रेंड्स फोटोन थ्योरी तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो फोटोन थ्योरी जो है ना वो चैप्टर नंबर 11 में आएगा, तो तब जाके आपको पता चलेगा कि ये क्या लिखा है, फ्रॉम वेयर इट डज कम। सो इट इज केम फ्रॉम द चैप्टर नंबर 11, सो इसको अभी मुझे स्किप करना पड़ेगा। तो सेकंड क्वेश्चन इज ओवर, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या थर्ड क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो क्या लिखा है भैया देखो तो जरा। टू स्लिट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट। देखो हमको ए दिया हुआ है कि दो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। चलो गुड। एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, सो कैपिटल डी जो है ना वो 1 मीटर है, वो भी दिया हुआ है। व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन व्हेन द ब्लू लाइट ऑफ अ वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल्स टू 500 नैनोमीटर इज गिवन। सो फ्रेंड फ्रिंज सेपरेशन का मतलब विड्थ ऑफ द फ्रिंज, तो अभी तो हमने डिराइव किया फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, अभी तो डिराइव किया, याद है किसी को? Lambda d by d. लैम्बडा कौन सा वाला डी, कौन सा वाला डी? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में? Capital D upon small वेरी d. गुड। तो हमारे पास लैम्बडा भी है, कैपिटल डी भी है, स्मॉल डी है। क्या मैं इसको सॉल्व करके आपका इंसल्ट करूँ क्या चलेगा? इंसल्ट करूँ क्या चलेगा? Is it okay, friends? Okay. Is in this question you just require to put the values and get the answer. Okay. चलो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 4, उसमें 6 इन दैट क्वेश्चन 6 डिफरेंट क्वेश्चन इज गिवन। तो आप एक बार इसको समझो। जो लास्ट 3 जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द JEE एंड नीट। कभी कभी JEE नीट के अंदर कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो ये वो चीज़ है कि जहाँ पे पूछ सकते हैं JEE नीट में। तो IMP फॉर JEE एंड नीट आप इसको शांति से एक बार पढ़ो। शायद ऐसा पॉसिबल है कि लास्ट 3 क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आपको मिले, तो वो मुझे नेक्स्ट टाइम मुझे पूछ सकते हो आप, एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो सकते हैं बहुत सारे। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे? यस और नो? Yes, sir. चलो क्या लिखा है? मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ द वेवलेंथ समथिंग समथिंग समथिंग
is incident from air to the water. चलो, monochromatic light is incident from air to water. Okay, then what are the wavelength? What are the wavelength, frequency and the speed? Wavelength, frequency and the speed of reflected, this is the refracted ray and this is the reflected ray. तो मुझे ये पता करना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे जो है उसके वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड क्या होगा, और ये रिफ्रैक्टेड जो है उसमें क्या होगा वो पता करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्टेड की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, रिफ्लेक्टेड में तो मीडियम चेंज ही नहीं हो रहा है, मीडियम वही का वही है। देखो, इंसिडेंट रे जो है उसका ही मीडियम है, वो ही मीडियम है रिफ्लेक्टेड का। तो इंसिडेंट रे जो है उसी का मीडियम है रिफ्लेक्टेड का। तो रिफ्लेक्टेड रे जो है उसमें मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब कि लैम्डा जो है ना वही का वही रहेगा। लैम्डा क्या रहेगा? 589 नैनोमीटर ही रहेगा, चेंज नहीं आएगा। अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? c बाई लैम्डा। तो आप 3 × 10⁸ डिवाइड बाई लैम्डा 589 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ ये कर दो तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। एंड तीसरा स्पीड। हाँ, तो स्पीड तो वैक्यूम है, एयर ही है, तो स्पीड क्या मिलेगा आपका? 3 × 10⁸ मीटर ही मिलेगा, मीटर पर सेकंड ही मिलेगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? बट व्हेन यू डील विद द रिफ्रैक्टेड रे, दैट इज समथिंग गोइंग टू चेंज हियर। रिफ्रैक्टेड में कुछ चेंज होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि ईटा इज इक्वल्स टू c बाई वी होता है। तो अगर ये जो स्पीड है ना वो अभी चेंज हो जाएगा। 3 × 10⁸ ईटा जो है ना वो 1.33 है। तो फ्रेंड्स, स्पीड इज गोइंग टू बी चेंज। नंबर 1, स्पीड तो चेंज हो जाएगा। नंबर 2, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। क्यों? सोर्स सेम है। वो तो सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक है, तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। वो जो आपको मिला था यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, जो आंसर मिलेगा वही आंसर यहाँ पे लिखना है। अब वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। ईटा इज इक्वल्स टू c बाई वी, तो c इज इक्वल्स टू f लैम्डा, v इज ऑल्सो इक्वल्स टू f लैम्डा। बट फ्रीक्वेंसी तो वही का वही रहेगा, आपको पता है। बट मीडियम के अंदर वेवलेंथ चेंज होता है, तो आपको याद रखना है when the ray is enters from the one media to other media, its wavelength is going to be changed. And what is the new wavelength? So if the ray is enter from vacuum to any other medium, तो new wavelength can be given by this formula lambda by eta। ये आपको याद रखना है कि कोई वैक्यूम में से या एयर में से कोई मीडियम में अगर वेव जा रहा है तो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है वो लैम्डा बाई ईटा हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। क्या ये बात आपको समझ में आया? इज दैट क्लियर? यस सर। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, we want to determine the type of the wave front. क्या लिखा देखो, what is the shape of the wave front in the following cases। तो वेव फ्रंट कैसा है वो मुझे पता करना है। कोई बात नहीं, कर लेंगे। देखो क्या लिखा है, फर्स्ट केस में क्या लिखा हुआ है? लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। देखो पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स के आसपास वेव फ्रंट कैसा होगा? डिस्कस हो गया। स्पेरिकल 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 होगा, वेरी गुड। सेकंड, light emerging out of a convex lens when the point source is placed at the focus। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि पॉइंट सोर्स है बट वो लेंस के फोकस पे पड़ा हुआ है। लेंस के फोकस पे हमने पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, और जो रेज इमर्जिंग हो रहा है लेंस के रिफ्रैक्शन होने के बाद लेंस में से बाहर निकलेंगे, उसका वेव फ्रंट कैसा होगा? तो फ्रेंड्स याद करो, अगर आपका सोर्स फोकस पे, अगर ये आपका सोर्स फोकस पे पड़ा हुआ है तो फोकस के में से जितने भी रेस बाहर निकलेंगे, फोकस में से जितने भी रेस बाहर निकलेंगे
वो आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्शन वो कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे। एम आई राइट फ्रेंड्स? तो ये सारे वेव्स रेज पैरेलल है, तो पैरेलल रेज है तो उसका वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा? Plane wavefront. एग्जैक्टली exactly. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? फर्स्ट का आंसर आएगा स्फेरिकल, बट सेकंड का क्या आएगा? इट विल बी Plane. वेव फ्रंट। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. थर्ड, the portion of the wavefront of the light from the distant star intercepted by the earth। मतलब अर्थ से बहुत दूर एक स्टार है, मतलब स्टार बहुत दूर मतलब इन्फिनिट डिस्टेंस पे है, तो इन्फिनिट डिस्टेंस से अगर कोई रे आ रहा है तो वो चाहे स्फेरिकल हो या चाहे सिलिंड्रिकल हो, बट हमारे पास वो आके कैसा हो जाएगा, मतलब इन्फिनिट डिस्टेंस पे जाके वो कैसा हो जाएगा? जैसे अर्थ की बात सोचो, अर्थ है स्फेरिकल, बट हमको हमको कैसे दिख रहा है, दिख रही है? Flat. Flat. राइट, तो वही तो बोल रहा हूँ कि अगर सोर्स से हम इन्फिनिट डिस्टेंस पे जाते हैं तो उसका वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा? Plane. प्लेन हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी प्लेन हो जाएगा। क्या ये चीज पता चली फ्रेंड्स आपको? Yes, sir. इट्स अ गुड क्वेश्चन। उसमें दूसरा वाला बहुत ही अच्छा था कि भाई हमने है ना सोर्स को पॉइंट लाइक सोर्स है, तो पहली नजर से हमको क्या लिखने की इच्छा होती है कि भाई पॉइंट सोर्स है तो उसका स्फेरिकल होगा, बट शांति से देखो तो सही क्या है कि पॉइंट सोर्स को कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखा हुआ है, और मुझे पता क्या करना है, अ लाइट इमर्जिंग आउट फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, तो वो जो हो जाएगा वो तो प्लेन हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन। चलो और दो क्वेश्चन और हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज 1.5 एंड व्हाट इज द स्पीड। तो स्पीड तो इजीली आप फाइंड कर सकते हो कि ईटा इज इक्वल्स टू सी बाई वी, तो वी इज इक्वल्स टू सी बाई ईटा। ईटा का वैल्यू आपको दिया है सी। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इजीली यू विल गेट कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, स्पीड। सेकंड क्वेश्चन, स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ ग्लास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट। चलो ऐसा दिया है कि स्पीड जो है ना वो कलर के साथ चेंज होगा, और कलर के साथ वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो आई शुड से is the speed of light, question is the speed of light in a glass independent of color? No. Q? Because v is equals to c by eta। मतलब ये जो आपका स्पीड जो होता है ना वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, सी तो कांस्टेंट है, बट इफ यू रिमेंबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंड ऑन द लैम्बडा। याद करो चैप्टर नंबर 9, वो लैम्बडा के ऊपर डिपेंडेंट है। तो v डिपेंडेंट ऑन ईटा बट ईटा डिपेंडेंट ऑन लैम्बडा। लैम्बडा मतलब डिफरेंट कलर। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि ईटा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्बडा होता है। तो v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ईटा, ईटा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्बडा, तो v प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा होगा। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्पीड मीडियम के अंदर ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका स्पीड मीडियम के अंदर कम रहेगा। तो फ्रेंड्स विबग्योर की बात करते हैं, विबग्योर तो कौन सा वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? तो लैम्बडा फॉर रेड इज अ लार्जर देन द लैम्बडा फॉर वायोलेट। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि वेलोसिटी ऑफ द रेड कलर इन द मीडियम विल बी लार्जर देन द वेलोसिटी ऑफ द वायोलेट कलर। वही पूछा है कि इन द ग्लास प्रिज्म विच कलर इज हैविंग द विच ऑफ द कलर ऑफ बिटवीन द रेड एंड द वायोलेट इज अ स्लोअर। तो कौन सा स्लोअर होगा? रेड के वायोलेट कौन सी, किसकी स्पीड कम होगी? Violet. Violet. वायोलेट का स्पीड कम रहेगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? इज दैट क्लियर? Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। देखो ये क्वेश्चन आप कर सके ऐसा है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सी सकते हैं, कर भी सकते हो आप। क्या है क्वेश्चन देखो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, slits are separated by the 0.28 मिलीमीटर, मतलब दो स्लिट के बीच का, मतलब हमारे लिए स्मॉल डी, तो स्मॉल डी का वैल्यू दिया हुआ है 0.28 मिलीमीटर।
डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, और मुझे ये बताया गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, ये हमको सेंट्रल फ्रिंज से फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस, मतलब हमारे लिए क्या दिया है, सेंट्रल से फोर्थ का मतलब मुझे x दिया हुआ, x का वैल्यू, हमारे जो थियरी में जो x था ना, सेंट्रल फ्रिंज से जो डिस्टेंस है उसको हम x बोलते थे, तो सेंट्रल फ्रिंज से जो डिस्टेंस है वो x दिया है, तो x का वैल्यू दिया हुआ है। पहले मुझे ये बताओ कि ब्राइट है या डार्क है? Right. तो ब्राइट के लिए कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? Constructive. तो n लैम्डा लिखो या 2n - 1 लैम्डा बाई 2 लिखो? N lambda. n लैम्डा। तो फ्रेंड्स फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, तो x4 इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा। तो क्या आपको स्मॉल डी दिया है? दिया है। क्या कैपिटल डी है? है। क्या x4 दिया हुआ है? है। तो क्या आपको लैम्डा मिल सकता है? डिटरमाइन, Yes, sir. जस्ट रिक्वायर्ड टू पुट द आंसर। अगर डिस्ट्रक्टिव, अगर डार्क फ्रिंज है तो आपको कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है? 2n - 1 लैम्डा बाई 2 का। ओके, यहाँ पे 2n + 1 मत अप्लाई करो, 2n - 1 ही अप्लाई करो, तो ही नंबर ऑफ फ्रिंज एंड नंबर ऑफ n का वैल्यू एंड फ्रिंज नंबर मैच हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, ब्राइट फ्रिंज की बात है तो n लैम्डा यूज करो, डार्क फ्रिंज है तो 2n - 1 लैम्डा बाई 2 यूज करो। इज इट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है वो मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो सारे खत्म हो जाएंगे, सो डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा साथ में करो, एक एग्जाम भी है आपका संडे को, संडे यू विल एग्जाम। मैं आज पेपर सेंड करता हूँ आपको, संडे को लिखना है पेपर, आज तक का उसमें है, आज तक जितना भी चलाया वो संडे के एग्जाम में होगा। तो आज मैं यहाँ पे लेक्चर यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। सैटरडे का JEE का नीट का शेड्यूल जो है वो एज पर द शेड्यूल है, मेरा लेक्चर जो है वो वहाँ पे है। ओके बोलो।